چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل۔ چیف جسٹس نے کیس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے خلاف آبزرویشن دی تھی۔ فیض آباد دھرنا فیصلے کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریفرنس کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ پاکستان بار کونسل کی جانب سے کیس مقرر کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ وزارت داخلہ سمیت متعلقہ فریقین نے 15 اپریل 2019 کو نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ وزارت دفاع، پیمرا، آئی بی کی جانب سے بھی نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ فائزہ صاحب ٹرینڈ کے ساتھ 2 کیسز، ایک فیض آباد کی امپلیمنٹیشن جو فائزہ صاحب کریں گے، جو ان کا گلے بھی بڑی ہے۔ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ایک سٹروک کھیلنے والے پاکستانیوں کی بہتری کے لیے نیب ترامیم کے ترازو میں کہہ رہا ہوں کہ کیسز کھل جائیں گے، خواہشات کا ملبہ گر جائے گا۔ سابق وفاق کے وزیر فیصل وابڈا کی 2 پیش گوئیاں درست ثابت ہو گئیں۔ 18 ستمبر کو ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا نئے چیف جسٹس آتے ہی فیض آباد دھرنا کیس کھولیں گے۔ 7 ستمبر کو OAR نیوز کے پروگرام میں پیش گوئی کی تھی۔ عطا بندیال جاتے جاتے 13 کے ٹولے کی ترامیم اڑا کر رکھ دیں گے اور نیب کیسز دوبارہ کھل جائیں گے۔ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا۔ یہ فیصلہ جو ہم نے کیا، بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے، ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے، فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا، وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا، اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ مسلم لیگ نون نے قمر باجوہ کی توسیع کی حمایت کیوں کی؟ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ رانا ثنا نے اعتراف کر لیا کہ نون لیگ نے اپنے فائدے میں توسیع دی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کھل کر بتا دیا کہ قمر باجوہ کو توسیع دے کر ہمیں اس فتنے کو راستے سے ہٹانے میں مدد ملی۔ بعض فیصلے وقت کے تقاضے کے مطابق حکمت عملی کے تحت کرنا پڑتے ہیں۔ قمر باجوہ کو توسیع دے کر ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا۔ نون لیگ کے ترجمان محمد زبیر کہتے ہیں 16 ماہ کی حکومت کو آپ ڈیل کہہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا ہو۔ ہمیشہ کہا کہ پی ٹی آئی کی بیساکھی ہٹا دیں تو ان کی حکومت گر جائے گی۔ A stable Afghanistan continues to remain an important foreign policy priority for Pakistan and the United States. Pakistan understands that peace and stability in its neighborhood is an essential prerequisite for economic prosperity. کالعدم ٹی ٹی پی داعش کی بڑھتی دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان میں ہمارے بہادر فوجی اور عوام دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ افغانستان میں استحکام نہ آیا تو ہمسایہ ملکوں سمیت عالمی امن کے لیے بھی چیلنج بن جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کی کونسل آف فارن ریلیشنز کا سوال و جواب سیشن میں گفتگو۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ دیر پا تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بھارت سے متعلق سوال پر کاکڑ نے کہا ہندوتوا پالیسی سے بھارت سمیت پورے خطے کو خطرات ہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل بھی ہندوتوا پالیسی کے اثرات کی عکاسی ہے۔ بھارت میں اقلیتیں خصوصی طور پر نشانے پر ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کی چین کے نائب صدر ہان جینگ سے ملاقات۔ سی پیک سمیت 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ چینی نائب صدر نے کہا پاک چین دوستی منفرد ہے۔ چین پاکستان کی بنیادی مفادات کے تحفظ کی کوششیں جاری رکھے گا۔ الیکشن جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن سے جاری اعلامیے میں کہا گیا انتخابات کا شیڈیول جلد جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی اور 30 نومبر کو حتمی فہرست شائع کر دے گا۔ حتمی فہرست کی اشاعت کے 54 دن کے بعد جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو مراسلہ عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا حکم۔ نگراں وزیر اطلاعات نے رد عمل دیا۔ کچھ لوگ خبریں پھیلا رہے تھے کہ ہمارا لمبا عرصہ ٹکنے کا ارادہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے اعلان پر خوشی ہے۔
इलेक्शन का ऐलान, पीपी के तहफुजात, नून लीग को इत्मीनान, इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल कहते हैं अब बेयकीनी खत्म हो गई, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले पीपल्स पार्टी का इलेक्शन का वक्त बताने का मुतालबा मान लिया गया, इजलास में फैसला करेंगे जनवरी में इलेक्शन कबूल है या नहीं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन करार दिया है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबाती तारीख के ऐलान की उम्मीद थी। सीईसी इजलास में बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर होगा। पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज की आईनी मुद्दत से बाहर होगी। एएनपी के भी तहफुजात। जाहिद खान ने कहा 90 दिन में इलेक्शन कराने के मौक़िफ़ पर कायम है। एमकेएम और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम। नैब केस जहां से रुके वहीं से शुरू, फाइलों से गर्द झाड़ ली गई। नैब हुकाम ने गाड़ियां भर भर कर रिकॉर्ड एहतसाब अदालत पहुंचा दिया। नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना और जाली अकाउंट्स केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 2 में जमा। शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड भी जमा। नैब केसों की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी निशाने पर आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर केस में तलब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में फरजाना राजा को भी नोटिस जारी। जाली सेनेटर रुबीना खालिद को लोक विरसा फंड केस में 4 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेशी के समन जारी किए गए। एहतसाब ब्यूरो ने सिंध में बड़े मगरमच्छों के खिलाफ डंडा चलाने की तैयारी कर ली। नैब में डेपुटेशन पर मजीद अफसरान तैनात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 8 अदालतों में भी 160 रेफरेंसेस वापस आ गए। नैब ने नून लीग की क़यादत की फाइलें भी निकाल ली। शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस एहतसाब अदालत में पेश। ख्वाजा साद और सलमान रफी के खिलाफ पैरागॉन केस भी अदालत भेज दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस समेत दीगर केसेस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस भेज दिए गए। स्क्रूटनी का अमल शुरू। शहबाज साहब, आप ये साहब के साथ जाएंगे या आप पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं तो अपने कायद को इंशाअल्लाह वहाँ रिसीव करूंगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी, हतमी फैसला करने के लिए शहबाज और मरियम लंदन पाकिस्तान से चले गए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक दिन गुजार कर दोबारा लंदन चले गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। आज नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक होगी जिस पर वतन वापसी, इंतखाबात की तैयारियों समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मोहम्मद अली दुरानी की एक ही दिन में सदर मुमलिकत और पीटीआई वफ़द से मुलाकातें। आरिफ अलवी और दुरानी का जमहूरियत के तसलसल और इलेक्शन के इनेकाद में आसानियां पैदा करने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने कौमी इत्तेफाक की राय के लिए मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ़द की मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात। मोहम्मद अली दुरानी की पाकिस्तान जमहूरियत और फौज से मुतालिक मुरतब करदा निकात की अहमियत पर उसूली इत्तेफाक किया गया। पीटीआई वफ़द ने सियासी हम आहंगी के फरोग और बहरान के हल के लिए मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों का एतराफ़ किया। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात के आसिफ जरदारी से गिले शिकवे। दोनों रहनुमाओं की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर मुलाकात। 1 घंटा तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात का पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की वादा खिलाफी का शिकवा। बोले पीडीएम ने सीट एडजस्टमेंट का वादा किया था। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बात करने की यकीन दहानी करा दी। वो दिन दूर नहीं जब माफिया के सरगना जेल में होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा यूनुस धागा ने मुझसे मुलाकात में कई अहम इंकशाफात किए। नेगरा वजीर आला से पूछूंगा उन्हें क्यों हटाया गया। सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुझे भी तहफुजात हैं। सिस्टम और माफिया कोशिश में है कि मुझे कमजोर कर दें, लेकिन मुझे परवाह नहीं।
गवर्नर सिंह को तकर्रुर और तबादले पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाएं। शर्जील मेमन का गवर्नर सिंह को जवाब। सईद गनी बोले, गवर्नर सिंह के बारे में सब जानते हैं कि वो एमकेएम के नुमाइंदे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लाजमी है कि किसी सियासी जमात का नुमाइंदा ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए। कई निगरां वुज़रा का ताल्लुक नून लीग से है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीआईए का नुकसान ज्यादा है, इसलिए उसे पहले निजी तहवील में देना चाहते हैं। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए चीन की 4 कंपनियों ने दिलचस्पी ली थी। अब 4 में से 3 सरमायाकार दिलचस्पी नहीं रखते, सिर्फ स्टील मिल्स की मिल्कियत की जमीन, मशीनरी और असासे फरोख्त करना चाहते हैं। गैर मुनाफे बख्श 10 इदारों की निजकारी की तैयारी। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, तमाम हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी तवक्को से ज्यादा खराब है। सिर्फ 1 साल में 500 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तमाम इदारों के सीईओ का नजरसानी के बाद दोबारा तकर्रुर किया जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलव्विस है। कैनेडियन वजीर आज़म ने सबसे बड़े अवान में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दाचाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कातिलों तक पहुंचना चाहते हैं, भारत इल्जामात को संजीदगी से ले, इंसाफ की राह में रुकावट न बने और हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क के शहरी को कत्ल कर सकता है? कैनेडियन शहरियों के जान माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। हम सच जानना चाहते हैं। दुनिया कनाडा की सरजमीन पर भारतीय रियासती सरपरस्ती में कत्ल का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सिख रहनुमा के कत्ल की मजम्मत कर दी। आरिफ अलवी ने कहा, सिख रहनुमा के बेईमाना कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब किया। दुनिया की खामोशी और बेइल्मी ने भारत को गैर मुल्की सरजमीन पर कार्रवाइयों का हौसला दिया। खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल। सुखदोल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक किया। सुखदोल सिंह ने 2017 में खालिस्तान तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी। पाकिस्तान को दुश्मन के इतनी ताकत से खतरा नहीं है, इस पाकिस्तान को हकीकी खतरा है तुम्हारे ईवानों में मौजूद करब क़ियादत से। ये सियासी दहशतगर्द, ये मुआशी दहशतगर्द जिन्होंने नस्ल दर नस्ल तुम्हारी इस गरीब कौम को यरगमाल बनाया है। हमारा एक ही नारा है, अवाम को जीने दो। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना तहरीक। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों की सियासत यहाँ, कारोबार बाहर है, वोट और प्रोटोकॉल के लिए यहाँ आते हैं। गरीब और मजलूम अवाम उठें और सरमायादारों जागीरदारों से अपना हक छीन लें। पाकिस्तान को करप्ट सियासतदानों से खतरा है। कभी हम चीन, कभी अरब अमारात से मांगने पर मजबूर हैं। चांद तारे के बजाय कशकोल हमारा निशान बन गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कराची में तलबा की एहतजाजी रैली। शाहीन कॉम्प्लेक्स शाहराह बंद करके एहतजाज किया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, पंजाब की तर्ज पर पीपल्स बस सर्विस तलबा के लिए फ्री की जाए। लाहौर में वकला की आइन, कानून की हकमियत और महंगाई के खिलाफ रैली। जीपीओ चौक से हाई कोर्ट के जजेस गेट तक पैदल मार्च किया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराही में वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का मरकज और बेहतरीन तजीवराती शिराकतदार है। पाक फजाइया को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की पाक फजाइया की खुद इनसारी की तारीफ, अहलकारों की पेशा वाराना महारत को सराहा।
कोर कमांडर पेशावर के चित्राल अहमद, जिला इंतजामिया, शहरियों और शौदा की फैमिली से मुलाकात। चित्राल के अवाम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने कहा, चित्राल के अवाम के ताउन से दहशत गर्दों का हमला और प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया। किसी गिरोह या फर्द को समाजी और इक्तिसादी सरगर्मियों में खलल की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहरियों ने कहा, चित्राल के अवाम पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। कुदरती हुस्न से मालामाल चित्राल की सरजमीन में मुकम्मल अमन है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ, कमिश्नर मालाकंड और डीपीओ चित्राल भी मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बन्नू और शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आईएसपीआर का कहना है, कार्रवाइयों में 8 दहशतगर्द मारे गए, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। हथियार और गोलियां भी बरामद की गईं। हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। हाफिज नईमुर रहमान और कामरान टिसोरी की दोस्ती हो गई। अमीर जमात इस्लामी कराची का गवर्नर सिंध को टेलीफोन, इदारा नूर हक आने की दावत दे दी। कामरान टिसोरी ने दावत कबूल कर ली। आज 11:30 बजे जमात इस्लामी के मरकज जाएंगे। अंजुमन असातिज़ा का आज से जामिया कराची में तदरीसी अमल के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। निगरां वज़ीर आला जामिया कराची के इंतज़ामी बहरान का नोटिस लें। 6 साल से यूनिवर्सिटी बजट की मंजूरी न होने पर तहकीकात का मुतालबा। अंजुमन असातिज़ा का कहना है, आज से क्लासेस और इम्तिहानात का बायकॉट किया जाएगा। कराची में शहरी सड़कों पर चलें, फुटपाथ पार्किंग बन गए। कारोबारी इलाकों में फुटपाथों पर पार्किंग माफिया का कब्जा। जिस मोटरसाइकिल पर चौक का निशान ना हो, पुलिस उठाकर ले जाती है। फुटपाथ पर बाइक खड़ी करने का जुर्माना सिर्फ 300 रुपए। बाज शहरी समझते हैं फुटपाथ पार्किंग के लिए ही बने हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी की कप्तान और कोचिंग स्टाफ से मुशावरत। एशिया कप की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जराए का कहना है, नसीम शाह की जगह हसन अली खेलेंगे। जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे। मेगा इवेंट से पहले स्पिन बॉलिंग कोच तैनात किया जाएगा। मुश्ताक अहमद मजबूत उम्मीदवार है। ज़का अशरफ का कहना है, वर्ल्ड कप में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। कप्तान और मैनेजमेंट एक पेज पर है। वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान से कबल मोहम्मद हफीज क्रिकेट कमेटी से मुस्ताफी हो गए। साबिक कप्तान ने ट्वीट करके बताया, क्रिकेट कमेटी को छोड़ रहा हूं। एजाजी मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। क्रिकेट कमेटी में जिम्मेदारी देने के लिए ज़का अशरफ का शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा रहेंगी। मोहम्मद हफीज बुध को होने वाले मैनेजमेंट इजलास का हिस्सा थे। इस्लामाबाद के निजी होटल में शाहीन शाह आफरीदी की तकरीब वलीमा। शादाब खान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की थी शिरकत। शाहीन आफरीदी ने काले रंग का सूट ज़ेब तन किया। साथ ही क्रिकेटर्स ने दूल्हे के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमें एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में टकराएंगी। होंगझो में जारी एशियन गेम्स में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दूसरा क्वार्टर फाइनल बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। कौमी टीम ने इवेंट की टॉप 4 टीमों में जगह बना ली। भारत मलेशिया के दरमियान मैच भी बारिश की नजर हुआ। पाकिस्तान और भारत बेहतर रैंकिंग की वजह से बगैर खेले सेमीफाइनल में पहुंच गए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? ग्रैंड फिनाले में सिर्फ 2 रोज बाकी। हर दिल अजीज अदाकार अदनान सिद्दीकी की शानदार मेजबानी में 5 फाइनलिस्ट के दरमियान कांटेदार मुकाबला। कौन बनेगा विनर? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद नियाजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर अरूबा मिर्जा? देखिए तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर से AR डिजिटल पर।